nutrition in plants. In class 6, you learn that food is essential for all living organism. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो जिंदा है उसको फूड चाहिए. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. ये सब फूड में होते हैं. Though these components of food are called nutrients. सबको क्या बोला जाएगा? Nutrients बोला जाएगा. And are necessary for our body. जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है. ठीक है, तो जीने के लिए हमें फूड चाहिए और फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स बोला जाएगा. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves. Plant जो होते हैं can synthesize food for themselves. But plant खुद से अपना खाना बना सकते हैं. But animals, including humans, cannot. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमंस अपना खाना खुद बना सकते नहीं है. They get it from plants or animals that eat plants. ठीक है, जो ऐसे एनिमल है जो प्लांट खाते हैं या खुद प्लांट को खा के हमें फूड मिलता है. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Humans and animals directly या indirectly प्लांट पे डिपेंड कर रहते हैं. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water. चलो प्लांट क्या यूज करता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स. ठीक है, the raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies. जो nutrients हमारे बॉडी में आते हैं उससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है? ग्रोथ होता है बॉडी का. टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, जो हमारे बॉडी में कुछ लग गया है तो उससे रिपेयर हो जाएगा of their bodies and provide energy. और क्या मिलती है हमें? खाने के बाद एनर्जी मिलती है to carry out life processes. तो एक तो हमारी बॉडी बिल्ट होती है, दूसरा उसका रिपेयर हो जाता है डैमेज का, और एनर्जी भी हमें मिलती है न्यूट्रिएंट्स से. न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड. अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism. ठीक है, जो हम फूड खाते हैं न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं. यूटिलाइज बाय द बॉडी. तो जो बॉडी उसे यूज करती है न्यूट्रिएंट्स को, उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Autotrophic यहाँ पे लिखा है organisms make food themselves from a simple substance is called autotrophic. ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपोस मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट. खुद अपना खाना बना लेते हैं. जैसे प्लांट को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती,
वो खुद अपना खाना बना सकता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। Therefore plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. तो एनिमल है वो कौन सा फूड लेते हैं? prepared by plants. They are called heterotrophs. जो दूसरों का खाना खाते हैं, दूसरों के द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं। heterotrophs मतलब अदर। ठीक है। Now we may ask where the food factors of plants are located. Plant में food कहाँ होगा? Whether food is made in the parts of the plants or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surrounding? How do they transport them to the food factories of plants? चलो फोटोसिंथेसिस सबसे प्रोसीजर समझना है हमें। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। Leaves are the food factors. Leaves are the food factories of plant. फूड कहाँ बनता है? Leaves में। Leaves are the food factories of plant. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. सब काम होता है leaf में। Water and minerals present in the soil are absorbed by the root. Root क्या काम करता है? जो water है और जो mineral है, water and mineral, इसको absorb करने का काम कौन करता है? Absorb कौन करता है? Root उसको absorb करने का काम करेगा। And transported to the leaf. And कहाँ पहुंचा रहा है उसको? Transported to the leaves. Leaves के पास पहुंचाता है root, water and minerals को absorb करके transported to the leaves. Leaves के पास पहुंचाता है क्योंकि leaves are the food factories of plant. फैक्ट्री में जाता है सब। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, और हवा में से क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल का फिगर है। सेल एक दिखाया गया है। You have seen the buildings are made up of bricks. जो बिल्डिंग बनती है वो ब्रिक से बनती है, ईंट से बनाई जाती है। Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cell. बॉडी जो बनती है वो किससे बनती है? सेल्स से बनती है। Cells can be seen only under the microscope. सेल्स को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। Some organisms are made of only one cell. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. सेल की जो बाउंड्री होती है यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. ठीक है। सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे दिखाया गया है ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, मतलब सेल मेम्ब्रेन ऊपर का बॉडी का पार्ट होता है, बाहर का, और बीच में न्यूक्लियस होता है। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. Cytoplasm. ठीक है। The nucleus is surrounded. nucleus के आजू बाजू में क्या है? ये क्या हो गया?
साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन बॉडी का बाहर का पार्ट होता है, बॉडी का लेयर। बॉडी के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, और आजू बाजू जो सर्कल रहते हैं वो बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सर्कल। ओके, समझ में आ गया सेल का स्ट्रक्चर। आपको फिगर ड्रॉ करना है होमवर्क में, और ये उसके नेम दे देंगे यहाँ पे। फिगर 1.1 होमवर्क में आपको उसको ड्रॉ कर देना है विद द नेम। Who the tiny pores present on the surface of the leaves? Leaves के surface में क्या होता है? Tiny pores होते हैं, छोटे छोटे pores मतलब होल होते हैं। These pores are surrounded by guard cells. उसके बाजू में क्या होता है? Guard cells होते हैं। Such pores are called stoma. उसको क्या बोलेंगे? Stomata. Figure 1.2. यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेक्शन ऑफ द लीफ, ये लीफ का एक पार्ट लिया गया है, जैसे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है लिखा है? क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोफिल है, जो लीफ में होते हैं। और ये क्या है? गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल। और जो बीच में क्या होता है, जो होल होते हैं उसे स्टोमा बोलेंगे। तो इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, गार्ड सेल इधर आगे दो तरफ होते हैं, और ये बीच का जो पार्ट है वो स्टोमाटा ओपनिंग, यहाँ पे ओपन है स्टोमाटा। स्टोमाटा ओपनिंग, यहाँ से एयर अंदर बाहर जाएगी, स्टोमा का फिगर है। The figure 1.2b with the name, you have to draw the figure with the name as homework. Water and minerals are transported. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे नर्व्स होती है, इसी तरह प्लांट में भी वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक अ पाइप, छोटे छोटे पाइप की तरह ऊपर जाती है। थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach to the leaf। ठीक है, जो वेसल है, जो पाइप है, वो पूरे रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव सब जगह होते हैं, वो लीफ तक वाटर एंड मिनरल ले जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इसे क्या बोला जाएगा? वेसल्स बोला जाएगा। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11। chapter 11 में थोड़ा पता चलेगा, लेकिन vessels through water and mineral leaves में पहुंचते हैं। The leaves have a green pigment। leaves का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। The leaves have a green pigment called chlorophyll। ठीक है, फिगर में हमें यहाँ दिखाया है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट।
It helps leaves to capture the energy of the sunlight. अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? It helps the leaves to capture the energy of sunlight. Sunlight की energy capture करेगा. This energy is used to synthesize, मतलब prepare food from carbon dioxide and water. Energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water and chlorophyll. क्या बनाते हैं? सब मिलके फूड बनाते हैं. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, उसमें sunlight भी चाहिए. In the presence of sunlight, it is called photosynthesis. यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान देना है हमें. एक तो फोटो मतलब क्या होता है? लाइट. एंड सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन. लाइट भी उसमें हेल्पफुल होती है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये सब खाना बनता है, इसीलिए हम सब लगे फोटोसिंथेसिस. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए एंड वाटर मिलना चाहिए. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. सन की प्रेजेंस में ही खाना बन सकता है और फूड प्लांट में स्टोर हो सकता है. मतलब एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. वहां से बहुत एनर्जी आती है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? सन. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. Food नहीं मिलेगा. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides, ज़्यादा में oxygen, which is essential for survival. हमें ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन बिना हम जी नहीं सकते. ठीक है, ऑक्सीजन हमें चाहिए. ऑक्सीजन के बिना हम 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया है. Besides leaves, photosynthesis also gives place in other green parts of the plant. Leaves में ही होता है ऐसा जरूरी नहीं. In green stems and green branches में भी हो सकता है. The desert plants have scale or spike-like leaves to reduce loss of water by transpiration. जो डेजर्ट होता है, जो लॉन होता है, वहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो कांटे जैसे हो जाते हैं. उससे क्या होता है? ट्रांसपायरेशन मतलब पानी एटमॉस्फेयर में कम जाता है. ट्रांसपायरेशन कम होगा. These plants have green stems which carry out photosynthesis. तो ऐसे जो प्लांट है जिसमें लीव्स छोटे हो गए हैं, स्पाइक लाइक, कांटे जैसे हो गए हैं, तो उसमें जो प्लांट का स्टेम है, मतलब जो बीच का पार्ट है जिसपे लीव्स या फ्लावर्स उगते हैं, स्टेम का पार्ट जो होता है उसमें भी फोटोसिंथेसिस. चार તમારું ઓલો
of all organisms is produced during the photosynthesis. The absence of in the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. Photosynthesis नहीं होगा तो life क्या हो जाएगी? Would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स इकट्ठा होगा। मतलब जो फूड हम बोल रहे हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिल रहा है प्लस वाटर, ठीक है, तो सनलाइट यूज करेंगे और क्लोरोफिल जो प्लांट में होते हैं क्लोरोफिल, तो उससे बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, मतलब प्लांट्स क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहाँ पे यू कैन सी फिगर 1.3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, सनलाइट यूज कर रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल जो लीफ में होते हैं वो यहाँ से उसे क्या मिल रहा है? यहाँ पे उसे क्या मिल रहा है? वाटर एंड यहाँ पे उसे मिल रहा है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल इन लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं और यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स रूट से अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन से बाहर मिल रहा है ऑक्सीजन। ओके, फिगर 1.2 ड्रॉ कर देना है नेम के साथ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन इज रिलीज। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. तो स्टार्च बन रहा है लीव्स में, तो हमें पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आपको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है। जो लाइन येलो कलर से हाईलाइट हो रही है, यू हैव टू अंडरलाइन इट इन टेक्स्ट बुक। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। Okay, यहाँ से the leaves other than green, the leaves other than green also have chlorophyll। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर के जो है लीव्स उसमें क्लोरोफिल होगा। ग्रीन कलर ना हो ऐसे जो लीव्स हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है।
The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. ठीक है, ग्रीन कलर नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि दूसरे पिगमेंट उसमें बढ़ जाते हैं, रेड कलर बढ़ जाता है, ब्राउन बढ़ जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। जो ग्रीन कलर के नहीं दिख रहे हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो रेड पिगमेंट है या ब्राउन पिगमेंट है बढ़ जाते हैं। You often see slimy green patches in ponds of stagnant water bodies। ठीक है, जो ऐसा पानी है, पॉन्ड का पानी, जो तालाब का पानी होता है, जो स्टेगनेंट है, जो कहीं जा नहीं रहा, स्टेगनेंट है, ठीक है, उसमें ग्रीन पैचेस, ग्रीन कलर के पत्ते हमें दिखेंगे कहीं ना कहीं लगे हुए पत्थरों पे या ऐसे किनारे पे या उसकी बॉर्डर पे, सरफेस पे। These are generally formed by the growth of organisms called algae। क्या हो जाता है वो? algae। Can you guess why algae are green in color? algae green color में क्यों होती है? जो नील आ जाती है या जो सरफेस पे पानी जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कलर के हमें दिखाई देगा, नील जैसे। They contain chlorophyll which gives them green color। तो उनमें भी क्या होता है? They contain chlorophyll, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, which gives them the green color। इससे क्या मिलता है? ग्रीन कलर मिल रहा है। Algae can also prepare their food for their own food by photosynthesis। Algae can also prepare their own food by photosynthesis। algae भी अपना खाना बना सकती है, कैसे? फोटोसिंथेसिस से, मतलब वो भी प्लांट हो गया, प्लांट के जैसा काम करेगा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। Synthesis of plant food other than carbohydrates। Synthesis of plant food other than carbohydrates। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। Plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, इकट्ठा करता है। The carbohydrates are made of, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो बनता है तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एलिमेंट होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat। ठीक है, उसी तरह क्या क्या मिलता है उसमें? प्रोटीन भी मिलता है और फैट्स भी मिलता है। But proteins are nitrogenous substance। प्रोटीन क्या है? उसमें ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन जो बनता है वो क्या है? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, मतलब नाइट्रोजन होता है। Which contain nitrogen। From where do the plants obtain nitrogen? तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन
एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जो प्रोटीन बनता है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है प्लांट को? Recall that nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. Nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, जो एयर है हमारी उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है। However, plants cannot absorb nitrogen, लेकिन plants directly नाइट्रोजन ले सकते नहीं है। in this form, soil has certain bacteria, तो जमीन में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं that convert gaseous nitrogen into, उसको क्या कहते हैं, convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into a soil. These are absorbed by the plants. जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो गैस में से गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में सॉइल में मिक्स कर देते हैं, फिर these are absorbed by the plants along with water। तो वाटर, जो नाइट्रोजन है जो बैक्टीरिया ने सॉइल के अंदर मिक्स किया है, तो पानी के साथ कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, रूट में, रूट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो you might have seen farmers adding fertilizers, फार्मर फर्टिलाइजर डालते हैं रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर डाला जाता है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस तरह भी नाइट्रोजन सॉइल में आएगा और कुछ बैक्टीरिया जो भी सॉइल में नाइट्रोजन को ला सकते हैं, रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो प्लांट्स को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, या तो फर्टिलाइजर से मिलेगा या बैक्टीरिया जो हवा में से नाइट्रोजन लेके जमीन में मिक्स कर रहे हैं उससे मिलेगा। In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents, ठीक है, और दूसरे constituents भी मिलेंगे। Plants can then synthesize proteins and vitamins। अभी उसके बाद जो रूट से प्लांट्स में नाइट्रोजन आ गया, plants can then synthesize protein and vitamin बनाएगा, ठीक है।